احباب فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب کا اس اردو جلسے میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، وہ آڈینس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی زبان کے ادیب کا جو ادیب ہے، جو سچا ادیب ہے، وہ سماج کو آئینہ دکھاتا ہے، کیونکہ ادیب جو ہوتا ہے، جو ساہتیہکار ہوتا ہے، وہ جو ہے سماج کا سب سے حساس آدمی ہوتا ہے۔ جہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، جہاں تک وہ کہہ سکتا ہے، وہ ہم آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، بہت ممنون۔ اور صاحب ان کا یہ قول مجھے 2 روز سے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو والے کس طرح اپنے خون کو سیاہی میں بدلنا جانتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق آپ سامعین ہیں جو اردو کو دل و جان سے چاہتے ہیں، آپ کو میرا سلام، شکریہ۔ جناب امتیاز خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور جو سلسلہ ہے اردو جلسہ کے پہلے سیشن کا، انوگریشن کا، افتتاحی اجلاس کا، وہ شروع کرے۔ میں محترم امتیاز خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ محترم حضرات، میں شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی اور بزم احباب فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ سب کا اس اردو جلسے میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، وہ آڈینس کے بغیر کچھ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جلوہ طور ہو اگر موسیٰ نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جب تک آپ نہیں ہیں کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں، کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو یونیورسٹی یونیورسٹی آف ممبئی کے شعبہ اردو میں کتنا خوبصورت پروگرام ہے، اور اس پروگرام سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے کافی دیر سے موجود ہیں۔ اسی لیے میں چاہوں گا کہ بنا تمہید جو ہے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ آج کا جو انوگرل فنکشن ہے اس کی صدارت کے لیے میں جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر شہیب ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ آج کے انوگرل سیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں پروفیسر عبداللہ امتیاز صاحب جو صدر شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان خانوادہ سیماب اکبر آبادی کے چشم چراغ حامد اقبال صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے التماس کروں گا کہ حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں۔ حامد اقبال صدیقی صاحب، آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اردو ایجوٹینمنٹ جو ہے اس کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے، ان کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اس مرتبہ سال 25 برس ہو چکے ہیں۔ 25 سال سے یہ اردو ایجوٹینمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان اقبال نیازی صاحب جو ہے کردار اکیڈمی سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں اقبال نیازی صاحب سے درخواست کروں گا۔ میں اقبال بھائی حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اردو ڈراموں کا بہت معتبر نام اقبال نیازی صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ توصیف کاتب صاحب جو صدر ہیں بزم احباب فاؤنڈیشن کے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں چاہوں گا چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے افتتاحی پروگرام ہے، اس کو بہت طویل نہ کرتے ہوئے توصیف کاتب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرائے کرم سٹیج پہ تشریف لائیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اردو جلسہ ہے کیا۔
آپ نے ہمیں جمع کیوں کیا ہے؟ توصیف کاتب ہیں اور آپ ہیں. آداب. میں سب سے پہلے آپ سبھی کا شکریہ ادا کروں گا اتنی بڑی تعداد میں شرکت کرنے کے لیے, اور میں شکر گزار ہوں شعبہ اردو ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی کا, جنہوں نے یہ ہم سے اشتراک کر کے یہ بہترین موقع ہمیں فراہم کیا. اردو جلسے کے بارے میں بتا دوں, یہ آج سے 3 سال پہلے اس کا پہلا ہم نے سیشن کیا تھا, اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک کلچرل اور ایک لٹریچر. پہلے دن آج کے دن جو کلچرل ایکٹیویٹی ہوگی, جس میں ابھی انوگریشن کے بعد ڈرامہ, پینل ڈسکشن, داستان گوئی, صوفی میوزک اور مشاعرہ جیسے حصے شامل ہیں. وہی دوسرے دن جو ہے وہ لٹریری ہوتا ہے, کلچرل پوری طریقے سے لٹریری ہوتا ہے, جس میں اسکول اور کالج کے تقریباً 12 انٹر کالج کمپٹیشنس ہیں. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں ادب کو, ساہتیہ کو آگے مستقبل میں بھی زندہ رکھنا ہے تو اسکول کالج کے بچوں کو اس سے جوڑنا ضروری ہے. اور یہ تحریک ہمیں حامد اقبال صدیقی سر جیسے لوگوں سے ملتی ہے کہ ہم بچوں کو ان سے جوڑیں تاکہ اس کا مستقبل, اس کا فیوچر سیکیور کر سکیں. اور آج کا یہ پہلا دن اور امتیاز خلیل صاحب کی نظامت, میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور ایک بار پھر استقبال کروں گا بزم باب فاؤنڈیشن اور شعبہ اردو جانب کی طرف. شکریہ. میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ پروگرام یونیورسٹی آف ممبئی اور بزم احباب فاؤنڈیشن دونوں کے اشتراک سے ہو رہا ہے, تو اس کے میزبان جو ہے, وہ جو دوسرے میزبان ہیں ہمارے درمیان, وہ پروفیسر عبداللہ امتیاز صاحب ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ عذرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں, لوگوں کا استقبال بھی کریں اور اس کے مقاصد کا بھی اظہار کریں. شکریہ امتیاز خلیل صاحب. آداب آپ سبھی کو. شعبہ اردو اور بزم احباب کے اشتراک سے یہ اردو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس جلسے میں آپ سبھی کا شعبہ اردو کی جانب سے, بزم احباب کی جانب سے آپ لوگوں کا استقبال ہے. اور چونکہ یہ ادب کا فیسٹیول ہے, لٹریچر کا فیسٹیول ہے, ساہتیہ کا فیسٹیول ہے, تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ساہتیہ یا زبان نہ کسی قوم کی ہوتی ہے, نہ دھرم کی ہوتی ہے, نہ ذات کی ہوتی ہے, نہ کسی مذہب کی ہوتی ہے. ساہتیہ سبھی کا ہے, ہم سبھی کے ہیں. کیونکہ جو ادب میں جو باتیں کہی جاتی ہیں, لٹریچر میں جو باتیں کہی جاتی ہیں, وہ ہمارے سماج کا آئینہ ہوتا ہے. جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, جو ہمارے سماج میں ہو چکا ہے, وہی ادب کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک اچھا ادیب, ایک بڑا ادیب سماج کو متاثر کرتا ہے, اور کمزور ادیب کو سماج متاثر کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی سماج کو کشمکش کا شکار ہوا ہے, یا سماج طے نہیں کر پا رہا ہے, یا سماج پہ جب تاریکی چھائی ہوئی ہے, اندھیرا پھیلا ہوا ہے, اس میں اس سماج کو راستہ دکھانے کا جو کام کیا ہے وہ ادیبوں نے کیا ہو, چاہے وہ ہندی کو ہوں, مراٹھی کے ہوں, اردو کو ہوں, تیلگو کو ہوں, یا پنجابی کو ہوں, یا گجراتی کے ہوں. کسی بھی زبان کے ادیب کا جو ادیب, جو سچا ادیب ہے, وہ سماج کو آئینہ دکھاتا ہے. کیونکہ ادیب جو ہوتا ہے, جو ساہتیہکار ہوتا ہے, وہ جو ہے سماج کا سب سے حساس آدمی ہوتا ہے. جہاں تک وہ سوچ سکتا ہے, جہاں تک وہ کہہ سکتا ہے, وہ ہم آپ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ہماری سوچ اتنی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک ناگا ارجن جی کا ایک شعر سناتا ہوں, جو ہر دور میں وہ عکاسی کرتا رہا سماج کی, کہ راجہ بولا رات ہے, منتری بولا رات ہے, سب نے بولا رات ہے, یہ صبح صبح کی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ ساہتیہکار بتا رہا ہے, وہ کسی کی نہیں. راجہ پرجا کا جو ہے, راجہ ہر جگہ کوئی سی ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں انہوں نے کہی کہ اس میں ہم کو سوچنا ہے. آپ راجہ منتری اور سنتری کے کہنے پہ مت جائیے, آپ خود سوچئے کہ سماج کو کیا کریں, کیونکہ کل ہم کو, آج ہم جی رہے ہیں, کل ہمارے بچوں کو اس سماج میں جینا ہے. تو
तो ये उर्दू जलसा का जो मकसद है, आपने देखा होगा कि गीत संगीत भी है, सूफ़ी संगीत भी है, बैतबाजी भी है, तकरीरी मुकाबला भी है, यानी अदब तफरीह का सारा सामान इसमें आपको मिलेगा। और मेरा अंदाज़ा है कि ये 2 दिन जो 1 और 2 फरवरी को इस ऑडिटोरियम में और ऑडिटोरियम के बाहर जो प्रोग्राम मुनक़िद होगा उसे आप बेहद महजूज़ होंगे। मैं अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरे जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसान मोहब्बत बज़बान दीगरा क्या, इसे आके तुम सुनाते तो कुछ और बात होती। शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि ये इसको मैं किस तरीके से हैंडल करूं, लेकिन अब ये है कि यही है और आप हैं। बात हो रही थी उर्दू ज़बान की, और मैं आपको बताऊं कि उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की जाती हैं। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एथनोलॉग। एथनोलॉग जो है ये पूरी दुनिया में लैंग्वेजेस के ऊपर काम करती है, और एथनोलॉग की जो सर्वे है उसका ये कहना है कि दुनिया में फ़िलवक्त 7,360 के करीब ज़िंदा ज़बानें हैं। 7,360 के करीब ज़िंदा ज़बानें हैं, और उस उर्दू जिसको लोग कह रहे हैं कि मर रही है, ये दम तोड़ रही है या सिमट रही है, वो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ज़बान है। हमारे एक अजीज़ हैं, अब देखिए ज़बान तो ये बनी जिस तरीके से, इसकी तारीख़ लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से इस शहर में, जिस शहर में हम हैं, जिसे उरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन कहा जाता है मुंबई को, इस शहर ने इस ज़बान को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं सागर त्रिपाठी, उन्होंने एक शेर कहा था कि बस इतनी बात पे हमने लगा दी जान की बाजी, वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। तो साहब, उर्दू के ताल्लुक़ से आप दुनिया जहान की बातें कर लीजिए, लेकिन उर्दू वो ज़बान है जिसके ताल्लुक़ बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, वहाँ पे हम उर्दू ज़बान में बात करते हैं। कुछ लोग आके उसके बाद मिलते हैं और कहते हैं कि साहब, आप जिस ज़बान में बात कर रहे थे वो हमें समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन दिल को बहुत भली लग रही थी। तो ऐसी भली ज़बान के ताल्लुक़ से हमारे एक दोस्त है, उनका शेर है कि उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, उर्दू को मिटा देंगे हम एक रोज़ जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही थी। तो उर्दू का मामला तो ये है। मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे दरमियान हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त इकबाल नियाज़ी साहब हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उर्दू का मजमा है, उर्दू के लोग हैं, और ये इफ्तिताही प्रोग्राम है, इसमें आप हैं और हमारे सामीन हैं। आदाब अर्ज़ है, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और तलबा व तालिबात, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब ने उर्दू ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से बहुत अहम बातें यहाँ पर की, और इम्तियाज़ खलील ने उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत खूबसूरत अशार यहाँ पर सुनाए। दोस्तों, एक मग़रिब के एक बहुत मशहूर मुफ़क्किर हैं, शायर हैं, टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का एक कॉल है जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर इम्तियाज़ साहब की बात सुन के, कि अदब का मकसद अपने खून को स्याही में बदलना है। और साहब, उनका ये कॉल मुझे 2 रोज़ से इसलिए याद आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि उर्दू वाले किस तरह अपने खून को स्याही में बदलना जानते हैं। ये जब प्रोग्राम तय हो रहा था, जश्न उर्दू का भी और उर्दू जलसा का भी, लगातार बैक टू बैक सारे उर्दू के प्रोग्राम्स, तो मैंने तौसीफ़ जो इसके करता धरता हैं, जो सदर हैं उर्दू जलसा के, और ये पूरा तामझाम उन्हीं का है, मैंने उनसे थोड़ा सा नाराज़गी के साथ कहा था कि मैं बोला, तुम ये इतनी दूर जलसा कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, और वो भी एक जलसा ऑलरेडी हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और तुम भी कर रहे हो, तो ऑडियंस हमारी उर्दू की सब बढ़ जाएगी, कैसे तुम मैनेज करोगे और कैसे इतनी दूर लोग आएंगे। तौसीफ़ बड़ा हौसलामंद नौजवान है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सर आएंगे, उर्दू से मोहब्बत करने वाले ज़रूर आएंगे। और मैं देख रहा हूँ
मैं देख रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात, इस हॉल में जो तादाद नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो वाकई लग रहा है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बात मुझे गुलजार साहब की याद आ रही है। गुलजार साहब आप सभी जानते हैं, मारूफ शायर, गीतकार और बड़ी शख्सियत उर्दू की। एक बार उनसे किसी ने कहा कि गुलजार साहब आप इत्र बहुत अच्छा लगाते हैं, बड़ी खुशबू आती है जब आप आते हैं, तो आपसे मिलके बड़ा खुशगवार तासुर आता है, इतना अच्छा इत्र आप कहाँ से लगाते हैं? तो गुलजार साहब की तो आदत है कि वो कोई बात का जवाब सीधे नहीं देते हैं, बड़े शायराना अंदाज में ही देते हैं। गुलजार साहब ने कहा, मियाँ कोई इत्र वित्र नहीं लगाता हूँ, ये खुशबू जो आपको आ रही है मैं उर्दू वालों के महफिल से आ रहा हूँ, तो ये उर्दू की खुशबू है। तो गुलजार जैसा शायर, गीतकार उर्दू की इस खुशबू को महसूस कर सकता है, तो हम जो उर्दू में पले बड़े, जिनका बचपन उर्दू में गुजरा, जिन्होंने, ये हामिद इकबाल सिद्दीकी यहाँ बैठे हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना खाना पीना सब कुछ उर्दू है, ऐसे जब जियाले मौजूद रहेंगे उर्दू में तो ये ज़बान कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये मिट नहीं सकती। और आपकी मोहब्बतें शामिल रही तो ये ज़बान हमेशा कायम रहेगी, ताबिंदा रहेगी, ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, बस आखिर में एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी के समंदर में बहुत से जलते हुए दिए छोड़े हैं। वो सारे दिए बुझ सकते हैं, जो दिए मैंने छोड़े थे ज़िंदगी के समंदर में, वो दिए बुझ सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी खुशबू, अपनी ताकत के बल पर एक दिया हमेशा ज़िंदा रहेगा और जलता रहेगा, और वो दिया है उर्दू। और मुझे पूरा यकीन है कि इस दिए को रोशन रखने का काम आप सभी करेंगे और मिलकर करेंगे हम। अंधेरा यकीनन ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अंधेरों में चिराग वही जला सकते हैं जिनके अपने अंदर उजाला होता है, और आप सबके अंदर वो उजाला मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है उर्दू की ये रोशनी, उर्दू का ये उजाला बहुत दूर दूर तक फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर शुहाब साहब, आप चूँकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ ETV उर्दू में काम किया करता था, और ETV उर्दू मराठी के साथ जुड़ा हुआ था हमारा ब्यूरो। हमारे ब्यूरो में 70-80 लोग वो थे जो मराठी में बात करते थे। अब वो मराठी के लोग जो है वो रात में कभी 1 बजे कभी 2 बजे फ़ोन आता है कि यार इम्तियाज़ साहब आप कर क्या रहे हैं? तो मैंने कहा कि इस वक्त तो शरीफ आदमी सोता ही है। तो कहते हैं अच्छा कोई अर्जेंट, जाहिर सी बात है आपका 1 बजे रात में किसी दोस्त का फ़ोन आया तो आप फ़ोन उठा लेंगे कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो मालूम हुआ कि साहब कह रहे हैं कि यार ऐसा है कि गज़ल सुन रहा था, गुलाम अली की गज़ल सुन रहा था, अब उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। वो मेहदी हसन साहब की गज़ल सुन रहा था, अब वो गज़ल आगे नहीं बढ़ रही है, ये गौर क्या है यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो गालिब को गालिब कहें, गुलाम अली को गुलाम अली कहें, गज़ल को गजल कहें, लेकिन उर्दू से मोहब्बत करने वाले यहाँ बेपनाह लोग हैं। और यही वजह है कि उर्दू के बेल्ट में, मतलब हिंदी वालों ने इससे मुकाबला किया इस ज़बान से, मराठी वालों ने हमेशा इस ज़बान से मोहब्बत की। इसीलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में उर्दू के सबसे ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस इसी रियासत में हैं। मैं चाहूँगा कि अब जिस मुकर्रिर को आपके सामने मैं बुलाने जा रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी तारुफ में कहा, खानवादे सीमाब से उनका एक शेर मुझे बेपनाह पसंद है, और वही शेर उनका तारुफ है। आप शेर को महसूस कीजिए कि ये मेरी आँख बहुत तेज़ रोशनी में खुली, ये मेरी आँख बहुत तेज़ रोशनी में खुली, मैं देखता भी तो क्या देखता तुम्हारे बाद। जी हाँ, मेरी मुराद है हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हामिद साहब अज़राए करम माइक पे तशरीफ़ लाएं। ख़ातिन हज़रात आदाब, शुक्रगुज़ार हूँ शोबे उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी और उर्दू जलसा मुनक़िद करने वाले तमाम नौजवानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ खाकसार को यहाँ मदऊ किया।
اردو کے تعلق سے کافی باتیں ہو چکی ہیں. مجھے شکریہ یوں بھی ادا کرنا ہے کہ آج اس تقریب میں انہوں نے میرے دادا مرحوم سیماب اکبر آبادی کو یاد کیا ہے. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس خاندان سے میرا تعلق ہے. اردو زبان بلا شبہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں زبانوں کا امتزاج جو ہوتا ہے اس کا قائل ہوں. کاروباری سطح پر گجراتی بولتا رہا ہوں میں، تھوڑی بہت سندھی بھی، بیپاریوں سے تعلق رہا ہے تو سندھی بھی تھوڑی بہت آتی ہے. مراٹھی آج کل زیادہ بولنے لگا ہوں چونکہ ہاسپٹلوں کے چکر اس عمر میں زیادہ کاٹے جاتے ہیں تو مراٹھی زیادہ بولنے لگا ہوں. انگریزی بولنا مجبوری تھی. اردو زبان میری اپنی زبان ہے. تو کئی زبانوں سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی زبان کو صحیح بولوں. میں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے سیماب صاحب کے چند شعر آپ کو سنانا چاہوں گا اگر اجازت ہو. متفرق شعر سیماب صاحب کے سنانا چاہوں گا. اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا، اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا، عرفان دل ہوا مجھے اپنا پتہ ملا. عرفان دل ہوا مجھے اپنا پتہ ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا. منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، سب کچھ ملا مجھے جو تیرا نقش پا ملا. اور دو تین شعر اور سناؤں گا میں کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر. علامہ سیماب فرماتے ہیں کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے انسان پر، ستاروں کی چمک سے چوٹ لگتی ہے رگے جاں پر. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. اور ایک غزل کے تین شعر کے حرم اور دیر کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے. حرم اور دیر کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے. یہاں حد نظر تک صرف عنوان محبت ہے. محبت کرنے والوں کی محبت ہی شریعت ہے. محبت کرنے والوں کی محبت ہی شریعت ہے. کسی کو یاد کر کے آہ کر لینا عبادت ہے. کسی کو یاد کر کے آہ کر لینا عبادت ہے. اور وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا. وہ سجدہ کیا رہے احساس جس میں سر اٹھانے کا. عبادت اور بقید ہوش توہین عبادت ہے. اور یہ کہ میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں. میری دیوانگی پر ہوش والے بحث فرمائیں، مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، بہت ممنون. صاحبان، بات ہو سیماب صاحب کی اور یہ شعر نہ پڑھا جائے جو میرے خیال سے پہلے تمہیدی شعر کے بعد میں پڑھوں گا کہ شاید جگہ نصیب ہو اس گل کے ہار میں، شاید جگہ نصیب ہو اس گل کے ہار میں، میں پھول بن کے آؤں گا اب کے بہار میں. اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. سیماب صاحب اردو شاعری میں ایک سکول کا درجہ رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم اب اس مقام پہ آ چکے ہیں کہ جب ہم اس محفل کے صدر کو سنیں، اور صدر بھی ہندوستان کی کے اس صوبے سے آتا ہے جسے اب تو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، لیکن صوبہ تو ہے. اردو کا صوبہ جو ہے وہ ہندوستان میں جموں اینڈ کشمیر ہے. وہاں کے جموں یونیورسٹی کے صدر شعبہ پروفیسر شہاب ملک صاحب جو ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ عذرائے کرم مائک پہ تشریف لائیں. شکریہ خلیل امتیاز صاحب.
डाइस पर बैठे हुए मेरे दोस्त अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, दूसरे अहबाब, और मैं देख रहा हूँ कि सामने ये उर्दू वालों की कहकशा नहीं है, बल्कि डिफरेंट ज़बानों के लोग चेहरों से मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि उर्दू किस कदर मकबूल ज़बान है और लोग इसे सुनने के लिए किस तरह जौक दर जौक किसी भी फंक्शन में आते हैं। देखिए, जहाँ तक उर्दू का मामला है, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मॉरिशस, बांग्लादेश, मिस्र, इंग्लिस्तान, जापान, ये उन जगहों की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ मैंने खुद जलसों में शिरकत की है, पनप रही है, और इसमें गैर ममालिक में भी अदब लिखा जा रहा है, जो इस बात का सबूत फराहम करता है कि उर्दू ने बरे सगीर की हदें क्रॉस करके पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, हम सब जानते हैं, और 1947 ईस्वी तक बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल लोग उर्दू में बात करते थे। उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान भी रही, और तहरीक आज़ादी में उर्दू ने जो रोल अदा किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू का दिया हुआ नारा है, सरफरोशी की तमन्ना, इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे अशार और अफसाने प्रेमचंद के कि जो मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तहरीर किए गए थे और लोगों में एक जज्बा, एक वलवला जो है पैदा करते थे अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के लिए। इस ज़बान के बुनियाद गुजारों में उतना काम मुसलमानों ने नहीं किया जितना काम जो है हिंदू और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों ने किया। दिया शंकर नसीम, पंडित रतननाथ सरशार, कृष्णचंद्र, बेदी, कौन भूल सकता है, ये वो नाम हैं जिनको हम उर्दू के बुनियाद गुजारों में शामिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ और हमारे पड़ोसी देश ने इस ज़बान को अपनी सरकारी ज़बान बनाया, तो इसके साथ एक ख़ास किस्म का लेबल लगा दिया गया हिंदुस्तान में कि ये मुसलमानों की ज़बान है। पाकिस्तान बन गया, मुसलमान पाकिस्तान चले गए, इसलिए ये ज़बान भी पाकिस्तान चली गई, जो कि एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन 47 के बाद जब हम थोड़ा सा 60 की दहाई में आते हैं तो हुकूमतों को एहसास होने लगा कि ये ज़बान तो हमारी अपनी ज़बान है, ये दिल्ली और दिल्ली के गिरदो नवाह में पैदा हुई, उसके बाद ये दक्कन ने इसकी आबियारी की और फिर वापस शुमाली हिंदुस्तान में आई। इस ज़बान को नज़रअंदाज करना जो है हिंदुस्तान की तहज़ीब को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की सकाफ़त को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ होगा। चुनाचे हुकूमत हिंद ने
इकदामात उठाने शुरू किए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उर्दू एकेडमियाँ कायम की, जिनकी वजह से उर्दू के जलसे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द होने लगी और उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता से फिर खोया हुआ मकाम मिलने लगा। इधर चंद बरसों से फिर उर्दू के साथ वही मुसलमानों वाला लेबल लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आपको ये मैं बात वसूख से कह सकता हूँ कि उर्दू को हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बांटना, उसको किसी ख़ास मज़हब से उसको जोड़ना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। अभी खलील भाई ने कहा कि रात को मुझे फ़ोन करते हैं मराठी वाले, डोगरी और कश्मीरी वाले भी मुझे फ़ोन करते हैं कि फ़लानी जगह ये लफ्ज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उर्दू को आप ख़त्म कर दीजिए, जो ख़त्म होने वाली नहीं है। आप सबको मालूम होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी, यूएनओ ने भी इस ज़बान को अब तस्लीम कर लिया है। आप इस मुल्क से हिंदुस्तान को ख़त्म कर दीजिए, जो ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। आपका मीडिया बैठ जाएगा, क्योंकि उर्दू मीडिया में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक गंगा जमुना तहज़ीब को मिटाने के ज़िम्मेदार होंगे, उस तहज़ीब को जिसकी आबियारी हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों और नेताओं ने की है। हमारा मुश्तरका कल्चर जो है, उसकी जितनी ज़बरदस्त अक्कासी उर्दू ज़बान में हुई है, उर्दू ज़बान के अदब में हुई है, किसी दूसरी ज़बान के अदब में नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि उर्दू एक अवामी ज़बान बन चुकी है और अवामी ज़बान कभी मिटती नहीं है जब तक अवाम उसे बोलते हैं। उर्दू अवामी ज़बान है, अवामी ज़बान रहेगी और अवामी ज़बान के अलावा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों को एक ही लड़ी में परोने का काम भी उर्दू कर रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगरचे कि उर्दू का कोई घर नहीं है, कोई मखसूस सूबा नहीं है या मखसूस रियासत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हिंदुस्तान की हर रियासत में राब्ते की ज़बान का दर्जा इख्तियार कर चुकी है और इसको हटाना हिंदुस्तान को तकसीम करने के मुतरातिब होगा। मैं इस बात से कभी मायूस नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि उर्दू ख़त्म हो गई, उर्दू को ये हुआ, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुआ, इसलिए कि उर्दू ज़बान जिस तरह से हिंदुस्तान के अवाम में मकबूल हो रही है और जब तक उर्दू ज़बान में उर्दू के मुशायरे मौजूद हैं, गज़ल मौजूद है, ड्रामा मौजूद है, ये ज़बान कभी अपनी जड़ें नहीं हटा सकती है हिंदुस्तान से। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। जब मुशायरा होता है या जब कोई गज़ल महफ़िल गज़ल होती है, मुशायरा और महफ़िल गज़ल मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से लोग बिला लिहाज मज़हब व मिलत उमड़ आते हैं, तो ये ज़बान की चाशनी का, उसकी खूबसूरती का, उसकी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। मुंबई शहर बज़ाते खुद उर्दू का एक गढ़ बन चुका है। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि आज के दिन
दो जगह पर दो जलसे हो रहे हैं, और वो कोई छोटे जलसे नहीं है बल्कि बड़े जलसे हो रहे हैं। जहां मैं कल देख रहा था, इम्तियाज़ साहब मुझे बता रहे थे कि कल जश्न उर्दू में 2000 लोग आए थे जिनके दस्तखत हुए हैं। और आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये भीड़, तो मुंबई और रियासत महाराष्ट्र वाकई वो खुशनसीब रियासत है, और यहाँ की हुकूमत को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बगैर किसी लिसानी तासुब के इस ज़बान को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया है, और बुनियादी सतह पर इसको लागू करके, स्कूलों और कॉलेजों में इसको लागू करके महाराष्ट्र वो पहली स्टेट बन गई है जहां उर्दू जो है फल रही है, फूल रही है, और जब तक मुंबई शहर मौजूद है उर्दू को मैं समझता हूं किसी किस्म का खतरा नहीं है। मैं इस जलसे के मुंतज़मीन, खासकर जो बज़्म अहबाब है और उनके साथ शोबे उर्दू है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह की तकरीब मुनक़्क़द करना, जश्न उर्दू बहुत होते हैं, लेकिन इतने सारे तकरीबात एक ही बैनर के तले करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो इन्होंने कर दिखाया है, जिसके लिए ये तौसीफ़ और अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और ख़ास कर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ आप सामीन हैं जो उर्दू को दिलो जान से चाहते हैं। आपको मेरा सलाम, शुक्रिया। यहाँ हमारा जो पहला सेशन है वो ख़त्म होता है। अब जब ये सेशन ख़त्म हो रहा है तो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो है प्रीत नगर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बस्ती बसाई गई थी। 1936 में शुरू हुआ था काम, 38 में जो है वो पूरा हुआ था। गुरु बख्श सिंह, जिनको बाद में प्रीत लड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा, क्योंकि प्रीत लड़ी जो है वो पंजाबी का सबसे ज़्यादा मशहूर मकबूल मैगज़ीन था, वो उन्होंने शुरू किया था। और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि लाहौर और अमृतसर दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी बस्ती बसाई जाए जिसका नाम ही उन्होंने रखा था प्रीत नगर। और उस प्रीत नगर में उर्दू, हिंदी और पंजाबी के बड़े राइटर्स, फैज साहब वहाँ रहे, साहिर वहाँ कुछ दिन रहे, अमृता प्रीतम से वो मिले वहीं पे, अमृता प्रीतम भी कुछ दिन वहाँ पे रही, बलराज साहनी वहाँ पे रहे। एक ऐसी बस्ती उन्होंने बसाई थी जिसके ताल्लुक से उनका ये कहना था कि जहाँ पे जो मज़हब होगा वो इंसानियत होगा। आप अपने मज़हब पे रहें, लेकिन यहाँ पे रहने वाला जो है वो इंसानियत की बात करेगा, सारे लोग एक जैसे होंगे। गुरु बख्श सिंह का वो ख्वाब पूरा तो हुआ। 400 एकड़ पे वो बस्ती बनाई गई। उस वक्त तक टाउन प्लानिंग की कोई बात नहीं थी। आप सोचें, मैं बात कर रहा हूँ 1936 की। गुरबख्श जो है वो मिशिगन यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई के बाद वहाँ पे कुछ बस्तियाँ देखी। कुछ राइटर्स को पढ़ने के बाद जब वो मुतासिर हुए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी एक बस्ती होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज हमारे भारत में प्रीत नगर हर शहर में बसाने की ज़रूरत है। एक ऐसी बस्ती जहाँ पे हम अपने सारे इम्तियाज़ात को किनारे रख करके, हमारी अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को किनारे रख करके हम इंसान हो जाएं। यहाँ एक नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, दुआ, कि आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। और आइए अर्ज़ गुजारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरा बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज़ को हल्का कर दे। और जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। और जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। जिनका दीन पैरवी किस्ब व रिया है उनको,
हिम्मत कुफ्र मिले, जुरत तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतज़िर तेगे जफा हैं उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले, और इश्क का सिर्रे नेहा जाने तपा है जिससे आज इकरार करें और तपिश मिट जाए, और हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। मैं ये तमहीद बांध रहा हूं इसलिए कि ये नज्म जिस शख्स को पढ़नी थी उसका नाम है नसीरुद्दीन शाह, लेकिन अभी मुझे मैसेज आया कि नसीर साहब नहीं आ रहे हैं। मैं उस खलिश को मिटाने के लिए उस तमहीद को मैंने बांधा कि प्रीतनगर का जो कॉन्सेप्ट लेकर के नसीर साहब बस्ती बस्ती घूम रहे हैं, इत्तेफाक से अभी अभी मुझे पैगाम, मैं उनकी तमहीद बांधने वाला था, उस प्रोग्राम को करने वाला था, लेकिन जितना अफसोस आपको है उससे ज़्यादा अफसोस मुझे है कि उस शख्स के इस मिशन का मैं हिस्सा बनने वाला था, लेकिन हम नहीं बन पाएंगे। तो नसीर साहब का अभी मुझे मुंतज़मीन ने बताया कि वो नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल आज के इनॉग्रल सेशन में आए हुए तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन नौजवानों की जानिब से ये जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है। ये कोई कहना चाहिए छोटे नौजवान है, मेरे ख्याल से 30, 32, 35 साल के बच्चे हैं, 8, 10, 15 बच्चे जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को किया है। मैं उन सब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।